हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई रुचि सिंह वेलकम यू ऑल इन द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन ब्रॉट बाय तहास्तु ICS। तो जो हम न्यूज़पेपर रिफ़र करते हैं दैट इज़ द हिंदू डेली एडिशन। और आज 1 फरवरी है, आप सब ने पढ़ा होगा कल के न्यूज़पेपर में या कल की न्यूज़ में ही रहा होगा कि देयर बी प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम बजट। तो एक आर्टिकल है इंटरिम बजट पे, हम ये जानेंगे कि इंटरिम बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, यूनियन बजट क्या है, व्हाई इंटरिम बजट दिस ईयर, व्हाई नॉट फुल बजट, व्हाई नॉट कंप्लीट यूनियन बजट। सो बिफोर वी टेक अप द एंटायर जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में one by one in detail, let's begin our day with one of the quotes, and that is, it's not that I'm so smart, it's just that I stay with the problem little longer. Now guess whose quote is this? Any guesses? नहीं, गांधी जी नहीं है. गांधी जी will not always come to your rescue. This quote is by Albert Einstein. इसका मतलब क्या है? That is persistence, perseverance, hard work, persistency के साथ, consistency के साथ, you have to work on the problems, any problem, be it challenges of everyday monotonous study, sitting for 8 to 10 hours and reading the same thing again and again. So you have to keep on working on the problems, and then there'll be a day when you will reach at the solution, or the solution will become easy part and a part of your life, ठीक है? And the ability to fight back in the adverse situations, from the adverse situations. So these are the spirits. It should be imbibed by every person, be it in the any field, be it student, be it the officers working in adverse situations. So with this thought, let's begin our day with each of the articles analysis in detail. So जो पहला article हम पढ़ेंगे, please keep marking with me on your newspaper. I hope you're sitting with your newspaper now, and just flip through the pages and keep marking each article in your newspaper, and you have to read it with me or read it after the session gets over and you have the better grip over the articles. So the first article which we will be reading in detail is dense fog at the IGI airport, 300 flights delayed, 20 cancelled, page number 2. Another article which we'll be taking in detail is what makes the India-France strategic partnership tick, page number 18. The next article which we'll be taking in detail is what is needed from a governor's reticence. Reticence का मतलब क्या होता है? Reservedness या unwillingness to speak so much. ठीक है? So governor has to act or speak in a such way where the integrity of the office is not compromised. Also constitutionally जो उसके limitations होते हैं holding an office, तो one has to maintain the integrity of that office. तो इस आर्टिकल में थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है. गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने हैज़ मेड सम स्टेटमेंट इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. बाय द वे, हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक इशू, आई थिंक टॉपिक हो जाएगा GS मेंस और प्रीलिम्स के दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि देखिए, आप वेरियस टेम्पल विजिट्स, अयोध्या राम टेम्पल एंड मोदी जी's विजिट टू Kalaram temple, and then visits to different temples all over the India. तो अब जो है आपके लिए आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री आई थिंक इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और ये कंट्रोवर्सी भी जो है उसमें अभी हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की, 1857 वॉर की, हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू ब्रिटिश leaving the country. So all these in this article we will be reading. We will present full budget once new governments formed after polls. Government is formed after polls. Modi, page number 13. ठीक है? तो इस साल इंटरिम बजट अभी इंटरिम बजट प्रेजेंट किया गया और आज ही फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इंटरिम बजट प्रेजेंट कर दिया है. कल के आपके न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल से रहेगा व्हाट आर ऑल द पार्ट्स ऑफ इंटरिम बजट. आज में हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल के अंदर, वो हमें देखेंगे कि बजट क्या होता है, यूनियन बजट का मतलब क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है. कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे that is going to help you to solve some problems based on interim budget, union budget, constitutional provisions क्या है बजट के. All these things will be taken in detail. Now let's take up each article in detail. All right. Dense fog at IGI airport,
300 फ्लाइट डिलेड, 20 कैंसल, पेज नंबर 2। चलिए पेपर देख लेते हैं। Go to page number 2 directly. Nothing to be read on page number 1. So this is our article. इसमें nothing is of importance to us. Just go to last paragraph, but one that says the fog in Delhi. The fog in Delhi and over parts of northern India was caused by low-level clouds. The fog in Delhi and over parts of the northern India was caused by low-level clouds from rain-bearing storms known as western disturbance. Usually 5 to 6 western disturbances pass over northern India from December to February, but this year there have been none during the December and most of January. The first significant western disturbances, please note it down, the first significant western disturbances in Delhi was reported on Wednesday. तो इस आर्टिकल से थोड़ा सा हमें ये रेफरेंस मिल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, दैट इज फॉग क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, इस बार फॉग अभी क्यों है और क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई शिफ्टिंग है, देयर इज some changes in the pattern of western disturbances due to say climate change or global warming. तो थोड़ा सा हम वो देखेंगे. Once more such western disturbances is expected over the next week. This will result in persistent cloudiness and that is and continued fog, but will increase the nighttime temperature. Well, this is it about this article. जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, चलिए समझ लेते हैं इस आर्टिकल को आपको अप्रोच कैसे करना है. तो सबसे पहले आप ये समझें what is fog. जिसमें समझने की जरूरत है, आप सबसे पहले आप ये समझिए the meaning of fog. The first thing which you will understand is meaning of fog. Then you will understand the difference between, this is the mind map. जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो वैसे ही उस चीज को समझने की कोशिश करें. डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट. प्रीलिम पीटी पॉइंटर हो सकता है, प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड देन व्हाट यू नीड टू रेज इज हाउ like how this is related to western disturbances. What is the link between fog and western disturbances? ठीक है. So this is all about this topic. इसको सबसे पहले मीनिंग समझिए, डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट एंड व्हाट इज द लिंक बिटवीन फॉग एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. चलिए पढ़ते हैं हम. Right. So what do you mean by western disturbances? These are storms that originate in Caspian or Mediterranean Sea and bring non-monsoonal rainfall to northwest India according to Indian Meteorological Department IMD. They are labeled as extratropical storm originating in Mediterranean. ठीक है. They are labeled as an extratropical storm and it is an area of low pressure that brings sudden showers, snow and fog. That brings sudden shower, snow and fog in northwest India. ठीक है. So these are the factual information for UPSC point of view for prelims. ठीक है. जो next point आपको पढ़ने की जरूरत है वो आप ये समझो. Next is probable cause of the variation. जैसा कि हमने पढ़ा, there are variations in western disturbances. Mostly 5 to 6 western disturbances by December, January आ जाते हैं, but there has been none this year as the article said. अभी जो आया जिसकी वजह से अभी जो है रेन शावर्स आए हैं या फॉग प्रिवेल कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. Why this variation in western disturbances? Partly due to warming atmosphere, global warming की वजह से. Western disturbances are low pressure areas. If it is a feeble western disturbances, it will not have moisture to weak अगर है तो
it will not have moisture to precipitate. ठीक है, for precipitation you need moisture, and by virtue of a warming atmosphere there is less amount of moisture available to precipitate. जब moisture की availability ही low है तो फिर how it will cause rain. Simultaneously, because of the warming in the atmosphere, western disturbances are going higher in elevation. Like जो height है western disturbances prevail जहाँ पे होनी चाहिए वो that is increasing. That is what it is saying. In general, they move in subtropical westerly jet. कहते हैं, as if you have read your geography part, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं दे आर एम्बेडेड इन जेट स्ट्रीम्स. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. ये दीज आर एम्बेडेड इन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. नाउ दे आर बिकमिंग लाइटर एंड मूविंग हायर अबव 200 हेक्टोपास्कल. तो वही बोल रहे हैं, जब जेट स्ट्रीम्स ही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को खींच के इंडिया की तरफ ले आते हैं, they have become weaker, because of which the occurrence of western disturbance has become low. ठीक है, so this is about basics of western disturbances. Next PYQ देख लेते हैं. प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए आप. Consider the following statements with respect to western disturbances. They are low pressure depression which occurs during winters, particularly the northern states of India. Second, they are basically a type of local winds. जो second article आप पढ़ेंगे, they are type of local winds which occur in northwestern part of India. तो आप बताइए which one is the right answer? One only, two only, both one and two. Which statements are correct? सिर्फ first statement correct है या दोनों statement correct है या सिर्फ two statement correct है? I'll give you a second to think. सोचिए. Well, you have your time is up. The second statement जो बोल रहा है local winds, नहीं, western disturbances are not local winds, they are global phenomena. So second statement is wrong. First हमने articles में ही पढ़ा low pressure depressions होते हैं and they occur during winters, particularly in northern states of India. So this is correct. So the right answer is one only. ठीक है, for you to have a bit of practice on your own, आपको मैंने एक मेंस का क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस करने के लिए. Try if you can think and try if you can answer this question. What do we understand by western disturbances? Discuss its impact on Indian weather system. तो आप इसमें कैसा अप्रोच रखेंगे? You will introduce with the meaning of western disturbances and then you will give it a link how western disturbances are embedded in jet streams and they कहाँ से कौन सा इनका डायरेक्शन होता है, where they come from, Mediterranean Sea, Mediterranean area से आते हैं, and how then each आप थोड़ा directions winds की दिखा करके you can draw a map of area around Mediterranean Sea and then you can connect it with the Indian subcontinent and you can see how western disturbances bring the various climatic change over Indian subcontinent. तो इसको समझा करके आप how this is how you can write an answer. ठीक है, and then moving to okay, so the next article, the first one we have covered. The second article is what makes the India-France strategic partnership tick. Page number 8. Go to page number 8 and let's read the article. So this is an article on editorial page. What makes the India-France strategic partnership tick? So what all you need to cover in this article is, you know, a bit of how whenever you get an article based on some two countries relations, तो आप उसको approach कैसे करते हैं? तो सबसे पहले so let's have a mind map how you should, when you start reading this article, how you should approach this article. So first of all, here in the question is India.
India-France relations that we are going to read. Okay. What all you should read in this? What are historical aspect in India-France relations? Historical aspect. थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है इंडिया फ्रांस रिलेशंस की. सेकेंड जो हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे एंड दैट इज सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस. एंड देन जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे दैट इज एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. देन जो अभी विजिट हुई है और उस विजिट में क्या क्या एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं दैट विल सी द एग्रीमेंट साइन करंट अफेयर्स पॉइंट व्यू से. अभी तो हम जो देख रहे थे दैट इज कंप्लीटली स्टैटिक पार्ट कि भाई व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, सिग्निफिकेंस क्या है एंड देन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है एंड देन विल सी द एग्रीमेंट्स signed. And then the fourth thing, the other thing which we'll see, the challenges in India France relations. क्योंकि हम चैलेंज देख लेंगे तो उसके बाद चैलेंज देखने के बाद हम सॉल्यूशंस भी जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम वे अहेड लिखते हैं. तो इसी से रिलेटेड वे अहेड. तो आप जो भी आपके पास सोर्स मटेरियल है टू रीड ऑन इंडिया फ्रांस रिलेशन, उसमें करंट अफेयर जो है जो आप न्यूज़पेपर से पिक करेंगे दैट इज एग्रीमेंट साइन. और ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है, तो आप एग्रीमेंट साइन देख लीजिए. दैट इज़ वेरी मच अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है यू कैन रीड इट फ्रॉम एनीवेयर वाइल यू रीडिंग दिस आर्टिकल, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, लेकिन जो आपको जो माइंड मैप प्रिपेयर करना है वो इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है रिलेशन का, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है, एंड देन एग्रीमेंट्स ऑब्वियसली एंड चैलेंजेस. क्योंकि चैलेंजेस लिखते हैं तो वे हेड लिखते हैं. ऐसे ही IR में इंटरनेशनल रिलेशन जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ, लेट्स से क्वेश्चन तुरंत बना लो लाइक यू नो व्हाट इज द हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू, एंड let's say the challenges which is being faced between the two countries in relations, say diplomatic relations. And because you speak of challenges, you speak of way forward as well. As a UPSC aspirant, you should always be solution oriented, not just problem oriented. तो problem अगर बताएंगे तो solution भी बताना पड़ेगा, and that is your way forward. ठीक है, so this is how you proceed ahead. तो चलिए आप एक थोड़ा इसके बारे में आर्टिकल थोड़ा आप देख लो. The article is written by Rakesh Sood, this former ambassador to France and currently distinguished fellow at the Council of Strategic and Defense. ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? Let's see. जो मैंने कहा था कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो स्टैटिक पार्ट है वो आप खुद देख लीजिए. थोड़ा सा एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं बिटवीन द टू कंट्रीज रिसेंट विजिट में वो क्या क्या है. डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, हेलीकॉप्टर्स जिसमें से टाटा एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स विल पार्टनर टू प्रोड्यूस H125 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया. तो अगर H125 हेलीकॉप्टर्स की बात करें दैट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, दैट इज यू नीड टू टेक अवे फॉर PT पॉइंट ऑफ व्यू. Fighter jets, French engine maker Safran to transfer 100% technology to build fighter jet engines in the country. ठीक है, satellites. Then another fourth point is satellites. India Space, PSU New Space India Limited and French company Ariana Space cooperation in satellite launches. ठीक है. The next is Shenzhen visa for Indian students. Agreement on the activation of the 5-year validity of Shenzhen visa for Indian students pursuing their master's degree in France. So these are the agreements which were signed. आपको ये अलग से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए and you can write it in as a part of current affairs.
Other things like historical aspects, significance, challenges, way forward, you have multiple sources available to you. Please refer that and then you can attempt any question based on India-France relations. ठीक है? So yeah, our next article which we will be taking today is what is needed from a governor is reticence. तो ये थोड़ा सा इंग्लिश है, आप थोड़ा इसको सीखते रहेंगे तो आपको कॉम्प्रहेंशन पेपर 2 में हेल्प करेगा. बहुत सारे बच्चों के लिए CSAT बहुत चैलेंजिंग हो गया है, तो उसका अगर आप खेलते हैं कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे भी तो काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन से आप CSAT क्लियर कर सकते हैं. तो अगर थोड़ा सा 1-2 वकैब द हिंदू पेपर से मिल रहा है, आप पिक कर सकते हो, उसको पिक करिए. तो रेटिसेंस मतलब होता है कि अनविलिंगनेस टू स्पीक प्रॉम्प्टली या रिजर्वनेस. तो कहते हैं ना कि वो एक चीज़ जो लाइफ में मैंने सीखा है, जो समझा है ओवर द ईयर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, क्या कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, जो भी आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो और एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय इन द फैमिली. तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है हमारी लाइफ का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है और क्या बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है. तो ये जानना कि कहाँ बोलना है, उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ नहीं बोलना है. तो इसमें थोड़ा सा जो हम जो न्यूज़ पढ़ेंगे उसमें यही है कि गवर्नर जो हैं तमिलनाडु के, ही मेड अ स्टेटमेंट एंड बिकॉज ही वॉज होल्डिंग अ सर्टेन ऑफिस, सर्टेन पोजिशन एंड उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं. तो इसमें वही चीज़ डिस्कस किया है राइटर ने. चलिए उसको डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या हम इसमें? गवर्नर. इसमें क्या पढ़ेंगे? दैट व्हाट इज द कंट्रोवर्सी. एज आई सेड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी. जिस आर्टिकल का जिस्ट है यही है कि देयर हैज बीन अ कंट्रोवर्सी बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नर. वो हम जानेंगे. उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे जो है वाई, बेस्ड ऑन व्हाट द स्टेटमेंट वाज मेड. ही मस्ट हैव रेड समथिंग, he must have had some experiences, the governor. तो उन्होंने उसके बेस पे किस बेसिस पे वो स्टेटमेंट बोला. ये सब बेसिस जो है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है. तो हम ये देखेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. तो विल सी दैट व्हाट आर द बेसिस. और ये आर्टिकल में ही लिखा हुआ है, तो हम वहीं से सीधा रिट्रीव करेंगे इन सब इंफॉर्मेशन को. What is the basis of the statement made? इस आर्टिकल में जो बहुत सारा रेफरेंस दिया गया है, वो रेफरेंस दिया गया है हिस्ट्री का, जिसमें कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, INA ट्रायल्स एंड INA. बहुत सारे नेम्स ड्रॉप किए गए हैं, जैसे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, INA ट्रायल्स, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है. तो ये सब चीज़ें नेम्स ड्रॉप की गई हैं. हम इन सब के बारे में देखेंगे और हम कनेक्ट करेंगे कि इस आर्टिकल से ये कनेक्ट करेंगे कि 1857 जो वॉर था, हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं ये सब, तो वो कैसे इस आर्टिकल में हम रेफरेंस ले करके चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स गो टू आर्टिकल. हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे. मोस्टली आर्टिकल्स को मैं रीड नहीं करती हूँ क्लास में, आप खुद रीड कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, और ये भी जानना जरूर, जब हम आर्टिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आर्टिकल पढ़ते हो तो सबसे पहले आप जस्ट गिव अ कर्सरी ग्लांस. ठीक है, गिव अ कर्सरी ग्लांस एंड देन एक माइंड मैप बनाओ कि इस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़ पीस से आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम ये सेशन लेंगे तो हम माइंड मैप्स क्रिएट करेंगे. जब मैं माइंड मैप्स क्रिएट करती हूँ, आप भी सोचो और डायमेंशंस क्या ले सकते हैं इस न्यूज़ पीस से. ठीक है, तो वो डायमेंशंस को आप भी अपने माइंड में चलाते रहा करो. तो और ये समझा करो कि कौन सा पैराग्राफ, अगर मैं एक राइटर होता या मुझे इसका मान लो प्रिस्य लिखना है, इस आर्टिकल का एक प्रिस्य लिखना है, तो सबसे पहला जो रेलेवेंट पैराग्राफ है मैं कौन सा टिक करूँगा,
क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि तमिलनाडु जो गवर्नर है जिनका नाम RN रवि है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। अब जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहला जो पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है गवर्नर्स व्यू, वो है, वहां से देखिए। सेकंड जो पॉइंट है आप ये यहाँ से आप कनेक्ट करिए। तो चलो थोड़ा पढ़ते हैं जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मिस्टर रवि हैज वेडेड इनटू माइन फील्ड, कहते हैं ना जो है माइन फील्ड पे जो है अपना पैर रख दिया और वो ब्लास्ट हो गया। तो जो कि बहुत फूंक फूंक के पैर रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप कोई ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहे होते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के साथ आती है। तो इट राइटर सेज दैट मिस्टर रवि हैज वेडेड इनटू माइन फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स विच लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट पे था, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें पढ़ करके। तो बोल रहे हैं कि जो कि एक कमेंट था कि व्हाट वर द हिस्टोरिकल इवेंट, different historical events which occurred and which historical event was the most important one to give India independence। ठीक है, वो कौन सा historical event था, दोनों का क्या comparison था, वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे। तो यही कह रहा है गवर्नर विद अ बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज शुड, जो कह रहा है कि जो कि ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इवन इफ गवर्नर के पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी था तो भी उनको नहीं करना चाहिए था, बट ही डिड। So Mr. Ravi was a student of physics who joined the Indian Police Services and spent long years in the Intelligence Bureau (IB) में। So he has obviously felt that he had the expertise to publicly express his opinions on an important period of Indian history। तो ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए जानने की जरूरत थी कि क्या पॉइंट था, इशू क्या था, कंट्रोवर्सी क्या है। In any event, it is intrinsically wrong for any constitutional authority to play up the role of some and denegate that of others। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो होती है उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब जो भी कोई भी जो इवेंट है, ठीक है, या अगर उसका मतलब कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेइंग सम पार्ट, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी बोलें, जो भी करें, उससे आपका किसी एक प्लेयर को या किसी एक लीडर या किसी एक जो रोल प्लेइंग पर्सन है, इंडिविजुअल है, आपका किसी को ना ही सपोर्ट करना है ना ही किसी को डेनिग्रेट करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि भाई एक गवर्नर को या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अब बात आती है कि उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट पे बात की थी। वो हिस्टोरिकल इवेंट क्या है, दिस इज नाउ अबाउट दैट थिंग। मिस्टर रवि हैज बीन रिपोर्टेड एज सेइंग दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट made little impact on British decision to leave India। Quit India movement made a little impact on British decision to leave India। Quit India movement को कौन लीड करा था? गांधी जी का आइडिया था ये। तो वही बोल रहा है, instead it was insecurity felt by British at नेताजी सुभाष चंद्र बोस forming the Azad Hind government and its army INA, and in 1946 by the naval mutiny and the air force rebellion। तो देख लीजिए, आपको हिस्ट्री में अपने स्टार्टिंग पोर्शन से क्या क्या पढ़ना है, आईएनए ट्रायल्स के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत रेलिवेंट हो जाता है। तो अब जब आप हिस्ट्री आप पढ़ें तो प्लीज हाईलाइट दीज थिंग्स। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है विच यू नीड टू रीड इज, so it goes on to say further, he also cited a conversation between British Prime Minister। तो बोल रहा है कि जो इनका बेसिस था वो क्या था, उसका जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उसका बेसिस क्या था। ठीक है, तो बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन IB, तो ही माइट हैव रेड सम आर्टिकल्स, सम फाइल्स, तो वो दैट वाज द बेसिस फॉर हिज स्टेटमेंट। नेक्स्ट इट सेइंग दैट ही ऑल्सो, जो उन्होंने साइट किया है जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे गवर्नर, तो he cited that there was a conversation between British Prime Minister Clement Attlee and an acting governor of Bengal in which Mr. Attlee said that impact of non-cooperation was minimal, but that the British left because they felt insecure after naval revolt and the Air Force rebellion। तो naval revolt क्या था, Air Force rebellion क्या था,
ये सब नॉन कोऑपरेशन क्या था, ठीक है, ये सब जानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था वो बहुत कम था बिहाइंड द ब्रिटिश मूविंग लीविंग द इंडिया एंड इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस। वो कह रहे हैं कि जो ये एक उनका बेसिस था, उन्होंने कुछ आईबी फाइल्स पढ़ी थी और कुछ उन्होंने साइट किया एक स्टेटमेंट को जो क्लेमेंट एटली एंड गवर्नर ऑफ बंगाल के बीच हुई थी। सो दिस इज, बट देन क्लैरिफिकेशन, देर इज नो डाउट दैट द लॉयल्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेज। अब ये जो ऑथर है, राइटर है, वो इस बात को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि फिर ठीक है, अगर लेट्स नाउ दिस डिक्रिप्ट and understand, interpret ki was it quit India movement, or is it right to say that was it quit India movement more responsible or less responsible for Britishers to leave India, or was it INA trials या जो है rebellion था army में, वो सब all these things, how these factors was one factor more responsible or the combination of these factors were responsible for forcing British leave India and India gain independence. So there is no doubt that loyalty of Indian soldiers in the British Indian Armed Forces was a principal pillar of their rule India. This is saying that जो Britishers में Indians आर्मी में रिक्रूट हुए थे, उनकी जो लॉयल्टी थी उसकी वजह से ही Britishers इंडिया को कॉलोनाइज कर सका था और रूल कर पा रहा था. दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ देयर रूल इन इंडिया. इफ नॉट फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश कुड नॉट हैव कंकर्ड इंडिया. अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, उनकी जो आर्मी थी, अगर इंडियंस उसमें काम नहीं कर पाते तो इवन जो है ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल ही नहीं कर पाते या इंडिया को एक्वायर ही नहीं कर पाते. सो नेक्स्ट, मोस्ट हिस्टोरियंस of the national movement also acknowledged that the INA and the naval mutiny shook British confidence in the loyalty of the Indian members of their army in India. And obviously after the Second World War, circumstances created by national movements, Britain's economic weakening and the international situation simply did not permit them to even think of undertaking armed action to retain their rule in India. तो ये वाला जो लास्ट आर्टिकल है वो कह रहा है कि ऑब्वियसली जो है जो सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, वो क्या क्या थी? लाइक नेशनल मूवमेंट्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक वीकनेस, एट दैट टाइम ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि द वीकनिंग पोजिशन ऑफ ब्रिटेन, इंटरनेशनल सिचुएशंस, ये these were the combination of factors which forced Britishers, which actually made British not to be interested anymore to remain India, rather leave India. ठीक है, तो this paragraph is about that. Next जो है ये पैराग्राफ पढ़िए. डिस्पाइट द ग्रेट ideological differences in leaders of the freedom movement, none of them ever denigrated नेताजी और दी INA. तो बोल रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट के जो वेरियस लीडर्स थे, none of them undermined or ridiculed or lessened the importance of Subhash Chandra Bose or the INA, which were played to give India freedom. तो बोल रहे हैं कि अगर ये उस टाइम भी लीडर्स ने जो है ये ऐसी कोई डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हुए भी किसी ने डेनिग्रेट नहीं किया था नेताजी और INA का रोल. हैड दैट बीन सो, वुड इट हैव बीन पॉसिबल. कह रहा है कि अगर ऐसा होता, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद भी लीडर्स ने किसी की रोल को जो है अंडरमाइन नहीं किया या लेसन नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हमारा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. जब उस टाइम ऐसा नहीं हुआ, और ये प्रूफ होता है इससे उस टाइम की सिचुएशन से कि जब INA ट्रायल्स हो रहे थे, ठीक है, तो जो डिस्पाइट ऑल द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, 3 ऑफिसर्स को डिफेंड करने के लिए जो लॉयर्स आए थे, उनका नाम क्या है ये नोट डाउन करिए. प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन एंड शाहनवाज खान एट देयर कोर्ट मार्शल एट द रेड फोर्ट इन 1944, 1945-46. The great lawyer
भोला भाई देसाई led the defense, which included तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू एंड कैलाश नाथ कटजू. अब देखिए जो लीडर, जो लॉयर्स आए थे डिफेंड करने के लिए, उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कितना था विद दीज ऑफिसर्स, बट ऑल ऑफ देम केम टुगेदर. तो किसी एक के रोल को डेनिग्रेट करना, किसी एक के रोल को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देना, even at that time the leaders did not do. So why a constitutional authority like governor should do this? This is a critical point the author is trying to make. So लास्ट आप काटजू का एक अनपब्लिश्ड बायोग्राफी है, उसमें इम्पैक्ट ऑफ आईएनए ट्रायल के बारे में लिखा गया है, विच आई रियली लव्ड द लाइन. आपके लिए आई विल रीड फॉर इट, जस्ट रीड विद मी. ही गोज ऑन टू नोट, आई एम firmly of the opinion that he writes that because of them the excitement in the country was intense and indescribable. आईएनए ट्रायल्स की बात की जाइए, आईएनए जो ट्रायल्स हुए थे उसमें जो ऑफिसर्स जिन्होंने रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दैट आईएनए मूवमेंट, तो वो बोल दिस काटजू's unpublished biography talks about that the excitement in the country was intense and indescribable. He goes on to note, I am firmly of the opinion that just as the murders in Jallianwala Bagh in 1990 laid the foundation stone of our national struggle. अब देखो जलियांवाला बाग 1919 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज अ पीटी पॉइंटर. Similarly, the Indian National Army trials were the definite cause of the withdrawal of the British rule in India in August 1947. The British discovered for themselves that it was impossible for them to continue. ठीक है? So you see the importance of INA trial. Maybe this will become important for you to for the mains point of view. Last paragraph में जो एक बहुत अच्छा line है, please read with me. What is not open to him while holding the office. तो अब जो author है आर्टिकल का, वो फाइनल स्टैंड पॉइंट बता रहा है, फाइनल व्यू पॉइंट बता रहा है कि जो मिस्टर रवि हैं, द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसका रिपरकशन क्या है, या उस पर व्हाट इज व्यू पॉइंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव. तो सर व्हाट इज नॉट ओपन टू हिम वाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज टू मेक हिज व्यूज पब्लिक. मतलब उनके पर्सनल व्यू हो सकते हैं, ठीक है, बट एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनके जो व्यूज हैं उनको वो पब्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है. गवर्नर्स आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक कंपैरिजंस. यहाँ तो पूरा कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन गांधी जी, बिटवीन सुभाष चंद्र बोस, आईएनए ट्रायल्स एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है. इवन अगर आप 1857 वॉर को कनेक्ट करें तो जो है, जो आईएनए ट्रायल्स और जो उनके ऑफिसर्स या जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस एम्प्लॉयड थे, अगर उनके रोल की भी बात करें तो इवन 1857 में देखिए, जो 1850 जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, तो उसमें इवन अगर आप ये देखें जो अवध को एक्वायर किया था, ठीक है, बेस्ड ऑन माल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस टाइम जो है ड्यू टू वेरियस कॉजेज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेज, देयर वाज ह्यूज अनरेस्ट इन अवध. और जो मेजर चंक ऑफ मेजर पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी इन ब्रिटिश आर्मी में, वो अवध, बिहार, उड़ीसा, इन्हीं रीजन से आती थी. So these people working in the British Army played a huge role in 1857 war. तो किसी एक इवेंट को डेनिग्रेट करना, किसी एक इवेंट को इम्पोर्टेंस को कम करना, ये कंपैरिजन ही क्यों? ये कैसे कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मेजर कॉज फॉर ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, और हाउ कैन वी से आईएनए वाज द मेन आईएनए मूवमेंट और आईएनए ट्रायल्स और आईएनए स्ट्रगल जो था वो मेन कॉज था. हाउ कैन आई और व्हाट कैन वी से, लाइक यू नो. तो ये काम हिस्टोरियंस पे छोड़ दीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आपको ऐसे कंपैरिजंस पब्लिकली नहीं करना चाहिए. यस, यू कैन हैव योर पर्सनल व्यू. तो दिस इज द फाइनल viewpoint. However, indirectly, if the impact of the actions of different leaders of the national movement, governors are also not expected to make comparisons, howsoever indirectly, of the impact of actions of different leaders of national movement. What is needed from governor is reticence. What is needed from governor is reticence, थोड़ा reservedness, ठीक है. So this is all about this article. जो last but not the least, last article हम पढ़ेंगे. Let's see that. We have covered 3 articles. The fourth and the final article is we will present budget once new government is formed after polls. मोदी पेज नंबर 13 पे जाइए.
वी विल प्रेजेंट फुल बजट न्यू वंस द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस आर ड्यू, तो जब भी लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो दैट ईयर इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड, नॉट दी फुल बजट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दैट। एज यू ऑल नो, व्हेन polls आर दिस क्लोज, the government presents an interim budget, and we too shall be following that tradition and will bring a full budget once the new government is formed, ठीक है। So अब इसमें है कि द फुल बजट जो बात की जाएगी when the government is formed, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और द लॉ टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। अब इंटरिम बजट में उन्होंने मिस्टर मोदी जी ने कहना है कि हम इस साल इंटरिम बजट प्रेजेंट करेंगे जब गवर्नमेंट फुल प्रेजेंस के साथ लोकसभा इलेक्शंस जीत करके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। तो ये जो है वुमेन का जो रिजर्वेशन है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, तो होता है ना कि बिफोर इलेक्शंस देयर आर प्रोमिसेस टू मेड, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोमिसेस। लेट्स सी हाउ फार दिस कम्स इनटू प्ले, comes into reality. So this is one thing which you need to note down. Now let's see the static portion. वो हमें जो पढ़ना है अपना, सबसे पहले तो ये सीखिए कि यहाँ पे माइंड मैप कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या समझने की जरूरत है हमें? सबसे पहले बजट, ठीक है। मीनिंग, बजट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ बजट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हु प्रिपेयर्स द बजट। These are the questions which should come to your mind जब आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हो। Who prepares the budget? ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे यूनियन बजट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन बजट समझने के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो है यूनियन बजट के क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन के बाद ये पढ़ेंगे इंटरिम बजट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इंटरिम बजट पढ़ने के बाद ये सोचिए आप कि अगर कोई पीवाईक्यू दिया है, आप यू मस्ट बी सॉल्विंग पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट में का डिफरेंस, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे फॉर आवर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। सो व्हाट इज बजट? प्लीज रीड। A budget is a forecast of government's revenue and expenses for a future period, typically the coming financial year. तो coming financial year का जो है गवर्नमेंट का revenue and expense forecast होता है budget, ठीक है। The union budget gives a detailed account of the government's finances, और जो union budget है, budget is different, union budget क्या है वो कह रहा है it gives a detailed account of government's finances over the previous fiscal year, summarizes new tax proposals for the upcoming fiscal year and estimates revenue and expenditure for the next fiscal year. तो आप जानिए यूनियन बजट क्या है, that is a detailed account of the government's finances over the previous fiscal year, डिटेल जो फाइनेंसेस है वो प्रीवियस ईयर का क्या है समराइज करता है न्यू टैक्स प्रपोजल को अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर, and then estimates revenue and expenditure for the upcoming fiscal year, ठीक है। Now in particular what is the union budget? It is the annual financial statement of the Union Government of India that is presented every year on the 1st of February, ठीक है, by the finance minister in the लोकसभा। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कब होता है? 1 फरवरी को।
क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, एंड कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में, ठीक। इट अकाउंट्स फॉर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस ड्यूरिंग फिजिकल ईयर फ्रॉम April 1st to 31st March. It accounts for the government's finances during fiscal year, बता दिया. The first budget in pre-independence, these all PT pointers, factual information, was presented in 1860 by James Wilson of the first of the British Indian government. After independence, India's first budget was presented in 1947 by Finance Minister R.K. Shanmugam Chetty. ठीक है, so this is factual basis. अब यूनियन जो बजट है दैट इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट्स क्या है, कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स क्या है, देखिए. दिस इज द पार्ट ऑफ बजट दैट रेवेन्यू बजट दैट डील्स विद द मनी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, द मनी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एंड स्पेंड विद इन ईयर. मतलब जो पैसा जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है तो रिसीव करने की और स्पेंड करने की, वो विद इन अ ईयर. दिस इज रेवेन्यू बजट. Includes income from taxes and other regular sources. Capital budget क्या है? This is the part of the budget that deals with the government's assets and liabilities. Assets and liabilities के बारे में बात करता है. It includes big expenses like building infrastructure, buying equipment, etc. So this is revenue budget and capital budget classification of union budget. Next आपको क्या समझने की जरूरत है? What is the constitutional provision of budget? तो Article 112. This is important. Please go through Article 112. Open your constitutional जो है आपका डी बासु का बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, तो आर्टिकल 112 की लैंग्वेज आप पढ़िए. आर्टिकल 111 ने क्या दिया है? इट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट. हाउएवर द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं क्वेश्चन पे क्यों दिया है दैट द टर्म बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गलती से को करेक्ट मत कर देना. दिस द बजट टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एनुअल फाइनेंशियल, अब यूनियन बजट के जो की बजट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, जब बजट प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट, तो उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. सो अपार्ट फ्रॉम बजट स्पीच, एक तो बजट स्पीच देता है फाइनेंस मिनिस्टर, एंड अदर मेजर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113, फाइनेंस बिल आर्टिकल 110, and fiscal policy statements mandated under FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, including the macroeconomic framework statements and the medium term fiscal policy fiscal policy strategy statement. So these are the budget key budget documents presented along the budget speech in union budget. Objective of the union budget क्या होता है? This is very very important for mains point of view. The union budget lies at the foundation of India's economic system and is extremely crucial for economy's functioning. The union budget aims to achieve several key objectives such as economic growth, social justice and equality, resource allocation, fiscal stability. ठीक है. Now who prepares it? The Department of Economic Affairs, DOEA, under Ministry of Finance, the primary body tasked with preparation of the budget. So this is your PT pointer. अब क्वेश्चन जो भी आता है आप डील कर सकते हैं. Now let's get to know what is interim budget, जो कि आज प्रेजेंट हो चुका है. कल जब आप द हिंदू आर्टिकल पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में ये बताया जाएगा कि इंटरिम बजट में क्या क्या जो है प्रेजेंट हुआ है. ठीक है, आज के लिए हम बेसिक्स तैयार कर लेते हैं. तो दिस डिस्कशन इज अबाउट यू helping to prepare basics of the budget and everything. So what do you mean by interim budget? An interim budget is presented by outgoing government. Point to be noted, not caretaker government. Not caretaker government. ठीक है, outgoing government. Ahead of the general elections, it presents only an interim budget or seeks vote on account, leaving it to next government to present the full budget. PYQs देखिए. What is the difference between vote on account and interim budget? The first statement, please read. I am giving you some time. Well, the first statement is the provision of a vote on account is used by regular government, while an interim budget is provision used by caretaker government. Second statement,
A vote on account only deals with expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts. अब बताइए क्या आंसर है? Think. Well, a vote on account explanation. A vote on account deals with the expenditure side of the government's budget, while an interim budget is a complete set of accounts including both expenditure and receipts akin to full budget. Explanation पढ़ लिया आपने, and now try to find out the answer. Did you get the answer? Well, I'm leaving this for you to think, and I have provided the explanation. Please give me the answer in next session. Answer in next session. You have the explanation, please find out. Next. Well, I'll give you a practice question also. Try to answer this. ठीक है, होमवर्क क्या है आज के लिए? ठीक है, what is interim budget? Give detailed account of union budget along with give a detailed account of union budget along with constitutional provisions. ठीक है, 250 words. So please practice this question, and next session we'll have a little discussion on this question, and then we'll continue with the next session on the Hindu newspaper analysis. Thank you. Have a great day ahead, and I hope you enjoyed the session. See you in the next newspaper analysis of DNA brought by Tathastu ICS. Thank you.